अगर मुझे सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदनी है, डेली ऑफिस रन के लिए कंफर्टेबल हो ऑन द बैक सीट, और उसी कार को ट्रैक पे ले जाके सुपर कार्स को भी बीट कर सकते हैं, मुझे लगा आई एम वेरी डिमांडिंग। पर एक ऐसी गाड़ी है, और ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर दोनों पे चलती है, और ये 800 bhp का पावर बनाती है। क्या ये दुनिया की बेस्ट गाड़ी है? ये है मर्सिडीज एस क्लास का AMG मॉडल। दिस शुड बी योर नेक्स्ट ड्रीम कार। और जानना चाहोगे इसमें क्या स्पेशल है? AMG का फ्रंट ग्रिल, और एस क्लास की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मर्सिडीज नहीं AMG का लोगो दिया गया है। डिजिटल LED लाइट्स, 21 इंच के लो प्रोफाइल टायर्स, ग्राउंड क्लियरेंस जिसको इंक्रीज किया जा सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग व्हील बेस, ताकि पीछे बैठने वाले लोगों को कंफर्ट उतना ही मिले। क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम जो कुछ ऐसा साउंड करता है, पर न्यूट्रल में ये सिर्फ 4000 RPM तक रेव करता है, which I feel is a clear miss out. डैशबोर्ड देख के कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये एक AMG है, unless you look at the steering wheel specifically. हर चीज बाकी सब कुछ S क्लास जैसा है। स्टीयरिंग व्हील क्लोज इंस्पेक्शन पे ही पता चलेगा that it's AMG spec, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं to change your drive modes and of course your other bits of the car as well. क्लस्टर भी टिपिकल S क्लास का है, however when you go here यहाँ पे ट्रैक पेस आ जाता है, which you generally find in AMG. स्क्रीन भी टिपिकल S क्लास की है, it's quite similar in terms of navigation also. सिर्फ लास्ट हाफ पे you see the AMG bits यहाँ पे. So moreover पूरी गाड़ी देखोगे तो कहीं पे भी कार्बन फाइबर या किसी चीज का यूजेज नहीं किया गया है, एंड AMG bits are very subtle, like when you look at here also यहाँ पे भी एक AMG मोड दिया गया है instead of the dynamic मोड जो हमेशा गाड़ी में दिया जाता है in the button. फ्रंट सीट्स टिपिकल एस क्लास की दी गई है, दैट मीन्स दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। हाउएवर जो लेदर यूज किया गया है दैट इज अ बिट मोर स्पोर्टियर लाइक एन AMG, एंड साथ में जो सीट का कॉन्टोर है that can also be adjusted electrically, and by the way इसमें heating, ventilation के अलावा मसाज जैसा फीचर भी दिया गया है, and you get multiple varieties of massage, खास करके hot relaxing massage, pretty cool to experience in an S class. वैसे S class is always known for its safety as well, और इसमें भी multiple airbags आते हैं which includes seat belt के अंदर भी एक airbag है for rear seat passengers. One thing which is special to S class is the Burmeister speakers. मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, I've always said Burmeister are one of the best set of speakers that you can get in a car, and that is one of the reasons शायद मेरे GLE लेने के लिए भी that was a strong reason to have a GLE. अच्छा, by the way इसमें जो है Burmeister के 4D surround है। अब how does that function? 3D तो normally चलता है, 4D is basically in your seat, so you get a feel of the audio. To be fair, I'm not a big fan of that. I feel 3D is more than sufficient. ये जो 4D feel आता है खास करके if you're driving, I don't prefer that thing. I'll prefer the 3D version. So I keep it off only when I'm driving an S class. Unlike most cars, इसमें दो sunroof दिए गए rather than a big single one, और बीच में स्पीकर लगाया गया है. This is done more for safety. या फिर Mercedes का safety का तरीका अलग है and they are not being able to achieve a large sunroof, या फिर Mercedes is looking at much higher standards. Which one do you think of the two is true? Let me know in comments. S class की rear seat has always been comfortable, क्योंकि जो इंसान पैसे देता है वो मोस्टली यहीं बैठता है, but the AMG owner will also drive the car. That means ये convenience is not going off at any point of time. Seats बहुत comfortable है, पूरा दिन भी पीछे बैठोगे you will not get tired, and this is the beauty of S class. प्लस ये एयरमैटिक सस्पेंशन है, यानी कि जब आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हो like when within the city, when going to work, ये एक S class जैसी ही function करने वाली है. It is going to be no different from it at all. So rear passengers are going to enjoy it comfortably. Even rear passengers के पास heating, ventilation and massage के options दिए गए हैं. Wireless charging pad है, और यहाँ पे एक tablet है जो हमें नहीं मिला है in this test car to try it out. अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, so let's go.
इसमें आता है 4 लीटर का V8 इंजन जो 600 प्लस bhp बनाता है. We have experienced this engine already on the G63 AMG and a lot more 63 AMGs also. लेकिन इसमें ना प्लग इन हाइब्रिड आता है, which means कि इसमें एक बैटरी पैक तो आता ही है, लेकिन जो मोटर है वो पावर प्रोड्यूस करता है टोटल विद द इंजन क्लोज टू 800 bhp. और इसी वजह से when you put your foot down, this thing moves absolutely bonkers. जी हाँ, this car does 0 to 100 in 3.3 seconds. ये बहुत सारी सुपर कार्स को रुला सकती है, not just on a straight line but even on a track. And you know what's the best part? कि जब इसे चलाते हो it doesn't feel stiff like an AMG. इसकी जो राइड क्वालिटी है is just phenomenal. तो इंडियन बैड रोड कंडीशंस जो है वहाँ पे इट गिव्स यू नाइस कंफर्ट. पीछे बैठ रहे हो, खुद चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. गाड़ी पुश करनी है ना, तभी भी इंजन इज गोना सपोर्ट यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो ओवरऑल यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार. एंड ऑल यू हैव टू डू इज, अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, जस्ट शिफ्ट इट्स मोड्स. व्हाई? क्योंकि अब मैं कंफर्ट मोड पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ एंड सी व्हाट हैपेंस. मैं एक्सीलेटर को प्रेस करने वाला हूँ, प्रेस, अब जाके गाड़ी रिएक्ट की है. It takes about 2 to 3 seconds for actually the car to react in the comfort mode. क्योंकि वो चाहती है कि भाई आप, if you're enjoying the car as an S class, you enjoy it as an S class. जब इसकी modes change करते हो like sport या sport plus, the exhaust becomes louder and that's when you start hearing the real exhaust. वरना comfort में you do not even hear the loud exhaust that this car has. So overall this is where the difference is कि ये S class है जब तक आप चाहोगे, ये AMG बन जाएगी when you want that to happen. And तब in the AMG mode जो इसका ड्राइव है, जो इसका परफॉर्मेंस है, that is uncomparable. मतलब उसमें वो इतनी एक्टिव हो जाती है that every gear shift down gives you a kick. ये देखो, okay, I started to drive this car in Sport Plus and देखा, listen to this. So अब आप एग्जॉस्ट सुन पा रहे हो. इससे पहले तो एग्जॉस्ट तो था ही नहीं. I couldn't hear the exhaust at all. I'm sure even you couldn't. So अब ये एक प्रॉपर मॉन्स्टर है that is like a supercar that is ready to pounce. So ये एक डिफरेंस आ जाता है. When you change the mode, the car becomes very different. So technically आपके पास एक सुपर कार है और आपके पास एक extremely luxurious कार है. Drive it the way you want it, when and how. अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा. सी दिस कार, आप सस्पेंशन रेस कर सकते हो बट इन वेरी बैड इंडियन रोड कंडीशंस आपको प्रॉब्लम आएगी. फॉर मी टू टेक इट इन एंड आउट ऑफ माई सोसाइटी कैन बी अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, आई नो दैट. एंड दो लोग बैठ के हम जाएंगे तो टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इफ़ योर सोसाइटी है स्लोप और डाउन हिल और एनीथिंग एट एनी पॉइंट, तो आपकी गाड़ी टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच आर गेटिंग कॉमन इन मैनी हाई एंड सोसाइटीज टुडे. सो फंडामेंटली आप ये गाड़ी मोस्ट जगहों पे चला सकते हो बट यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल. खास करके अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो, थोड़ा भी खराब रोड्स पे जा रहे हो, यू नीड टू बी लिटिल काम. पर जो एक्सप्रेस वेज है इंडिया के, दे आर सो ब्यूटिफुल कि आप ये गाड़ी को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस एक बार बन जाएगा ना, यू कैन डू दैट एंटायर स्ट्रेच विदाउट गेटिंग टायर्ड. अच्छा, वैसे इसमें ADAS भी आता है. थिंग्स यू शुड यूज इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर. ये सारी चीज़ें आपकी काम की है. बट जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, प्लीज स्विच इट ऑफ ऑलवेज. इट इज़ नॉट टू बी यूज, क्योंकि वो यूरोपियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है. तो लेट्स से कोई वॉक पास करते हैं ऑन अ रोड, तो ये गाड़ी बहुत पहले ब्रेक मार के कंप्लीटली रुक जाएगी. तो हमें डर लगता है कि कोई पीछे से आके हमारी गाड़ी को हिट ना कर जाए. सो दैट इज द ओनली थिंग, यू शुड कीप इट ऑफ इन द कार. उसके अलावा एवरीथिंग इज फाइन, बाकी सब अच्छे से चलता है. बट द लेन कीप इज अ लिटिल टू एग्रेसिव फॉर इंडियन ड्राइविंग. सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी. इट इज़ प्रॉपर एस क्लास. एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग आई हैव ज़ीरो कंप्लेंट्स, क्योंकि इन कंफर्ट मोड इट फील्स लाइक एन एस क्लास, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बॉडी रोल वगैरह फील होता है, वो थोड़ा लेटेंसी फील होता है. बट इन एस प्लस या स्पोर्ट प्लस जिसे कहते हैं, इट फील्स लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट्स कार. सस्पेंशन भी स्टिफ हो जाता है बट स्टिल द सस्पेंशन फील्स नाइस. स्टीयरिंग फीडबैक एक्सीलेंट, काफ़ी लाइट है बट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव.
So daily usage or even sport usage, you will love the way this car drives. हाँ देखो, if you're comparing it to a BMW, to an M, okay, M का steering is very lively. I am not saying that M is better or this is better, but I'm saying M में आपको liveliness comparatively ज़्यादा feel होता है than this car, but once you get used to this, you will love the way this thing feels. So it's a very personalized choice at the end of the day, but ये गाड़ी चलाने में is very nice as a overall package. प्लग-इन हाइब्रिड है इस गाड़ी में, सो वी एक्सपेक्ट वेरी हाई फ्यूल एफिशिएंसी. जैसे BMW की XM में प्लग-इन हाइब्रिड आता है तो 50-60 किलोमीटर पर लीटर वगैरह वगैरह की फ्यूल एफिशिएंसी देती है. नाउ दिस कार इज नॉट मेड फॉर दैट पर्पस. इसमें जो प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, दैट इज मोर टू एनहांस द पावर. सो 5-10 किलोमीटर ये चल जाएगी सिर्फ हाइब्रिड पे, वरना अगर द कार इज जस्ट ड्राइविंग तो ये पावर यूज करती है इलेक्ट्रिक का टू गिव दैट एक्स्ट्रा बूस्ट, एंड एट द सेम टाइम ये गाड़ी चार्ज भी काफी फास्ट होती है. सो इस टेक्नोलॉजी में बैटरी क्विकली ड्रेन भी होती है एंड क्विकली चार्ज भी होती है. दिस इज समवॉट क्लोजर टू बीइंग अ फॉर्मूला 1 टेक्नोलॉजी. तो इसी वजह से ये एक टोयोटा प्रियस जैसी नहीं है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर देगी. इन रियलिटी ये आपको 5 से 7 की माइलेज देने ही वाली है वैसे भी. एंड विथ हाइब्रिड विदाउट हाइब्रिड बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा फ्यूल एफिशिएंसी में ऑफ द व्हीकल, बट ओवरऑल इट जस्ट बूस्ट योर ड्राइव. एंड जो इंस्टेंट पावर चाहिए खास करके स्पोर्ट प्लस मोड में इज वेयर इट एक्चुअली डिलीवर्स. बट आई एम ऑफ अ पर्सनल ओपिनियन कि यार वो बैटरी पैक डालने की वजह से गाड़ी की वेट बढ़ जाती है, एंड इफ दैट कुड हैव बीन स्किप्ड, पॉसिबली गाड़ी शायद उतना ही परफॉर्मेंस दे देती टू अ सर्टेन एक्सटेंट. शायद इंस्टेंट उतना नहीं रहता था, मे बी 3.3 की जगह 4 सेकेंड्स हो जाता था, बट स्टिल इट वुड हैव बीन अ ग्रेट पैकेज. ऑलराइट, तो सवाल ये उठता है, शुड एनीवन बाय दिस एस AMG स्पेसिफिकली और नो? ये जवाब पे जाने से पहले, इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ कार और आप कंफ्यूज्ड है व्हिच कार टू बाय, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. येस, यू कैन स्पीक टू एन एक्सपर्ट हु विल गाइड यू व्हिच इज द परफेक्ट कार फॉर यू एंड व्हाई. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. ऑलराइट, मूविंग टू द वर्डिक्ट. इसकी प्राइस जो है इज अबाउट 4 करोड़ रुपीज. तो ये एक परफॉर्मेंस कार एंड एट द सेम टाइम एक लग्जूरियस सेडान है. सो इवन इफ यू आर सिटिंग एट द बैक, वो जो हार्ड या स्टिफ सस्पेंशन फील होता है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है. प्लस इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड एज वेल विथ अ लार्ज साइज बैटरी, जिसमें मोस्टली एक हैचबैक जितनी बैटरी पैक जा रही है. सो या, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर यू टू कंसिडर. सो शुड यू कंसिडर दिस? डेफिनेटली, अगर if you want the mix of both worlds. But if you're someone who can buy 2 cars separately, there's absolutely no problem with it. But if you are someone who doesn't want to show the world कि मेरे पास एक S AMG है, you can take out the badging and live with it peacefully, और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा that how fun and powerful this car is, क्योंकि mostly तो इलेक्ट्रिक मोड पे ही चलने वाली है within the city. So yeah, it's a great choice for those who are willing to bet on it. क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे Mercedes Maybach भी आ जाती है, which I feel again becomes a better choice to consider for most of you जिनको hardcore handling नहीं चाहिए, but you need that really good performance and maybe a lot more technology and some more extra bits. जैसे the Maybach is a lot more quieter, it's got a lot better quality of materials, so that is where the differentiation comes. तो ये दोनों choices आपके पास आज आ जाती है. So Mercedes is giving the S Maybach and the S AMG, both of them. The choice is yours. My personal pick would be AMG always. So अगर इसके बाद भी और सवाल है, put it in the comments. We'll try to see how could we answer it, and we'll see you tomorrow with an all new video. Take care. Love you all. Bye.